So students, we have studied graphs. We have studied graphs between, we have studied displacement time graph, position time graph, velocity time graph, acceleration time graph, and even we have studied like displacement velocity graph also, isn't it? Do you remember that there was graph like this and like this, the ball was bounced and we got this graph. This is a ball dropped. So here we have taken negative direction and its velocity is minus v over here, and here the velocity is v by root 2. Remember, the ball bounced back and reaches only half of the height, h by 2. Yes, sir. Yes. So see, graphs are very important, and here like how do we draw these graphs? See, this is x-axis, this is y-axis. There's always a relation between x and y. So you will have a equation in which you will have these two variables x and y. So like here you have the relation y equals to x square. So this is the relation between y and x. And then in all, see, this is how all the graphs are made. And then you just make a table like this, and then you have to put the value of x and you will get the value of y. So put the value of x equals to like 0. What will the value of y? 0. Put x equals to plus 1. What will you get the value of y? 1. Put x equals to minus 1. What is the value of y? 1. Good. So if you put like similarly, whether you put minus 2 or plus 2, put any of the values, what will you get? Positive 4. 4. 4. See, it doesn't matter whether you are putting negative values or positive values, but you are getting positive values. We call these functions as even function. You can see the power of x is even. So this is even function. So odd function if power is odd. So we have even function, and now the next step that you will do is you can clearly see that the power of x is 2 and the power of y is 1. So definitely it's a non-linear equation. So you will get a curve, right? So plot these points like x equals to 0, y equals to 0. This is your first point. X equals to 1 and y equals to 1. X equals to minus 1, y equals to 1. X equals to 2, y equals to 4. And similarly x equals to minus 2, y equals to plus 4. That is the same. So here the point is minus 2, 4. Here the point is 2, 4. Here the point, this point is minus 1, 1. This point is 1, 1. This is 0, 0. So we put these points, and then with the free hand we just draw a curve, because even if you try to join these points with a scale, you will not be able to join it, because these points are non-collinear points. So that is why you have to join them with a free hand, and you will get this curve. Similarly, if you will have the value 3, then y will be 9. So 3 and 9, you will get this point, and then minus 3, and this is minus 3 and 9. See students, I have already see, I've already told you that I'm not going to give you the entry 5 minutes after the class start, but still you people keep on coming. That's not a good habit.
So so now you get these points, and then with the free hand you join these points, so you'll get this curve. So very smooth hand, you have to draw this curve. So this is how we get the graph. Have you understood now? How do we draw a graph? Yes. All the graphs, all graphs are drawn like this only. This is the only way to draw any kind of graph. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So now we call this y is equals to x square equation for this curve. All the points which satisfy this equation will lie on this curve. If any point which does not satisfy this equation will not lie on this curve. Is this clear? Yes, sir. Yes. All the xy which lie on this curve, there are infinite points. If you put those points over here in this equation, then LHS will be equal to RHS. Okay. Got it? Yes. Yes, sir. Now, suppose this is you have this graph, and let us assume this graph as a displacement time graph, or you can say position time graph. Displacement and position is the same if you start from origin. Okay. So this position depends on, it's a function of t, so it depends on t. So how does it depends on t? It depends on t, x is equals to t square. Okay. How do we get this equation? We know that we get these equations from, if a is constant, if a is constant, then we have three equations of motion. So s is equals to ut plus half at square. So u is equals to 0 and a equals to 2 meter per second square. Then, and s will be your position at time t. So how will you write this equation? How will you rewrite it? X equals to, u is 0. So half into 2 into t square. So what do you get? X equals to t square. See, have you seen that this is the same equation? How do you get these equations? You get these equations from these equations of motion, and then you draw graph of them. Is this clear? Yes, Yes. sir. Okay. Now, I am interested in finding what is the average velocity from see, people keep on coming. Students, you have to join this class by 6 o'clock sharp. Okay. Okay, sir. So, good. Now, students, see, you have to find average velocity between time t is equals to 0 to t is equals to 3 seconds.
Okay, or you can take it as let it be 4 seconds. Okay, now Yes. okay, now average velocity means what? This is your average velocity. Average velocity, you know, that is delta x displacement upon time taken. Yes. So what is the displacement from time t is equals to 0 to t is equals to 4? What is the position? So it means delta x means final position minus initial position, final time minus initial time. Yes. Yes. Final position is what? This is your final position at 4 second minus your position at 0 second divided by time 4 second minus 0 second. Is this clear? Yes. 1. So okay, don't jump at the answer. Let us first see what is x position at time 0, because this is x of t. So t is equals to 0. So what was the position at time 0? Obviously the means x is equals to t square. So put t is equals to 0. So 0 square, that's 0 meter. What is the position at 4 second? 4 square, 16 meters. 60 meters. Good. So 16 meter is the final position minus 0 meter was your initial position. Time taken is 4 seconds. So what is the average velocity? 4. 4 meter per second. So 16 by 4. So 4 times 1. So this minus 0 doesn't affect, and 4. So 4 meter per second is your average velocity. Is this clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now I am asking you, what is the instantaneous velocity at t is equals to 2 seconds, t is equals to 100 seconds? Okay, what will the instantaneous velocity at 2 seconds and 100 seconds? तो ये कैसे निकाल लेंगे? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो ये जो आपका डेल्टा टी है जो कि 4 सेकंड था, ये बहुत छोटा हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो जाएगा। जब टाइम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं ना आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन इसमें जो जो आप एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी है, इसमें भी आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, जितना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं उतना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लो, और जितना थोड़ा टाइम ले सकते हैं उतना थोड़ा टाइम लो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यानी जो टाइम 2 सेकंड पर आपको निकालनी है, तो इससे पहले 1.99 और इधर 2.01। ये मैंने इतना अच्छा आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहां से यहां तक आप इससे जितना इधर ले रहे हैं, कम ले रहे हैं उतना उससे ज्यादा ले लो 2 से। तो जैसे 1.9 से 2.001 सेकंड, तो इसके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप इसको, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत स्मॉल टाइम है, तो आपका जो आंसर है, ये दोनों वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो आपका जो आंसर है, अब आप एक बात, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था आपको, मान लो 10⁻² डिवाइड बाय 10⁻² कर दोगे आप, तो 10⁻, ये तो 0 हो जाएगा, 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन ये बहुत बहुत छोटा जो है, वो दोनों बहुत छोटे नंबर हैं, तो आप इनका आंसर नहीं बता सकते, आप इन नंबर्स को लिख भी नहीं सकते, समझ रहे हैं? यू कैन नॉट राइट दीज नंबर्स बिकॉज दे आर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो सर फिर इस फार्मूले को हम यूज कैसे करें? इसको यूज करने का तरीका, या आप एस लिखो, या यहां पर ये चेंज इन पोजीशन के लिए एस लिखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लिखो, या चेंज इन पोजीशन लिखना है तो एक्स लिख लो, dx by dt।
तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन कहां पर, 2 सेकंड पर, एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पर बहुत स्मॉल चेंज इन पोजीशन, बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ आप यहां पर हमेशा आपको इसकी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? x की वैल्यू क्या है? Yes. टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर Square. आपने पुट कर दिया पुट। Yes, sir. अब यहां से आप अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को, तो 2 को आगे ले आओ और टी की जो पावर है ये पावर आगे ले आओ और फिर पावर को 1 माइनस कर दो, तो क्या आ गया? 2t। 2t. ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम t पर। ध्यान देखो, ये था आपका x एट टाइम t, ये है वेलोसिटी एट टाइम t। कुछ बात समझ आ रही है? वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ का? स्लोप। तो ये था आपका कर्व फंक्शन, कर्व थी आपकी, ठीक है ना, ये आपका फंक्शन था। और ये जो अब आपका निकला ये स्लोप ऑफ द फंक्शन, जो आपने फंक्शन लिया था ऊपर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये उसका क्या है? स्लोप। यानी अब आप किसी भी पॉइंट पर आप पोजीशन निकाल सकते हैं, t की वैल्यू पुट कर दो और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। समझ में आई कुछ बात? Yes, ma'am. Yes, sir. Sir. तो किसी भी पॉइंट पर अब अच्छा एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब v की वैल्यू पुट कर दो इसमें, v की वैल्यू कितनी है? 2t. तो 2t पुट कर दो, 2t. तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और क्या बच गया? dt बाय, तो dt बाय dt क्या आ जाएगा? 1। तो कितना आ गया? 2। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2। क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या यहां पर टाइम है? Yes. No, sir. अरे भाई ये तो 2 कांस्टेंट है ना, ये 2t कांस्टेंट था क्या? वेरिएबल है ना 2t, तो टी स्क्वायर भी वेरिएबल है, लेकिन a कितना है आपका? कांस्टेंट। Constant. आ गई बात समझ में? Yes, sir. एट एनी टाइम t वैल्यू 2 ही आएगी। आप t की जगह 1 पुट कर दो, t की जगह आप, अब हमें निकालना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, तो 2 पुट करो, तो कितना आया? पोजीशन क्या थी आपकी 2 पे? पोजीशन एट 2 4 मीटर। उस समय वेलोसिटी कितनी थी? अरे 2 इंटू टी, वो भी 4 मीटर पर सेकंड थी। और एक्सेलरेशन कितना था 2 सेकंड पे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 meter per second square. कुछ बात समझ आई आपको? Yes. अब t इज, मैंने पूछा था t इज इक्वल टू 100 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो पोजीशन क्या होगी t इज इक्वल टू 100 पे? व्हाट विल बी द पोजीशन? x ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर 10,000 मीटर, Yes. और वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 100 सेकंड, 2 इंटू 200. 200 मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन एट 100 सेकंड। 2 meter per second. 2 meter per second. अब आपको समझ में आया Yes, sir. कि Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमेशा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो आपको फंक्शन की फॉर्म में मिलेगी, ऐसे इंस्टेंटेनियस हमेशा ऐसे मिलेगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसलिए हमें ये डिफरेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर्व जरूरी नहीं है। अब इस कर्व से समझते हैं आपने निकाला क्या। जैसे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड थी, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपने एक क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया? जो इस कर्व को सिर्फ टच कर रहा था एक पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था जब, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो है कितना? 4। 4.
तो इसका स्लोप कितना है 4:2। 4 मीटर। मीटर नहीं है, स्लोप की कोई यूनिट्स, जो यहाँ पे अगर आप यूनिट्स लिखोगे तो 4 मीटर पर सेकंड है। यानी इस पॉइंट, सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है कि यहां पर आप 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहे थे, ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी इस पर्टिकुलर टाइम पर। अब t इज इक्वल्स टू 4 पे बताओ मुझे। 16। यस, वी टी इज इक्वल्स टू, बहुत बहुत जल्दी करते हैं हम, मतलब जो है ना बहुत ही जल्दी। तो v, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फंक्शन है। तो v टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा भाई? 4 मल्टीप्लाई टू 8 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा क्या? तो ये जो t इज इक्वल्स टू 4 है, यहां पर आपका जो स्लोप आया वो कितना आया 8, 4 टू द। तो आप देख रहे हो स्लोप आपका, यहां पर स्लोप 4 था और यहां 3 पर आपका स्लोप कितना था 9, 3 टू द 6। तो यहां 4 मीटर पर सेकंड स्लोप था आपका, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, और यहां कितना स्लोप था 1 पर। तो आप देख रहे हैं हर जगह आपका स्लोप 1.5 पर भी आप स्लोप निकाल सकते हो। 1.5 पे कितना स्लोप था टाइम t 1.5। तो कुछ 1.1 पे कितना स्लोप था 2.2। तो अब आप समझ गए। तो इस तरीके से जो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्लोप। और जब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो तो स्लोप का स्लोप मिल जाता है आपको। भाई आपने dx/dt निकाला तो क्या मिला? वेलोसिटी। समझ रहे हैं? ये क्या है? स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ, हाँ या ना? ये x, ये t, तो स्लोप ऑफ एक्स मिल गया। अब आप जो आपको स्लोप मिला है, इस स्लोप को भी अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ स्लोप। समझ रहे हैं? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। यानी कि ये जो आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा? ये स्लोप 1 सेकंड में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये है स्लोप ऑफ स्लोप। समझ में आई? तो ये स्लोप ऑफ स्लोप। यस सर। इज दिस क्लियर? यस सर। अब हम स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ जाना है। यहां मुझे स्लोप बताओ कितना है -4 पे। ये सेम है -8। वेरी गुड, -8 मीटर पर सेकेंड। यहां स्लोप कितना है? अब आप देख रहे हैं टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। टाइम नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि यहां मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी, माई ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, और मेरी ऑब्जर्वेशन से पहले 4 सेकंड पहले इतना स्लोप था, 3 सेकंड पहले -6 मीटर पर सेकेंड। और -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज। ओके, ये डिक्रीज हो रहा है। आप मुझे, सर इंक्रीज। आप एक बात बताओ, आपने शुरू किया -8, फिर -6, फिर -4, फिर -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है स्लोप। और जो स्लोप इंक्रीज हो रहा है वो आपका a इक्वल्स टू 2। 2 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? यस सर। तो जब आप स्लोप ऑफ स्लोप निकालते हो, अब आपको यह देखना है कि चेंज कहां पर आया। चेंज, यानी कि चेंज का मतलब क्या है सर? ये आपने ऑब्जर्व किया, इससे पहले क्या थी ये समझो आप। यहां पर एक बॉडी थी, वो
ये आपकी सपोज ये दो वॉल्स हैं, या चलो ये एक वॉल समझ लो चलो, और ये आपका ओरिजिन है, यहां से आप काउंटिंग करते हैं, इसको इधर बनाओ दूसरा, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो है यहां एक सपोज स्प्रिंग है, इसको इधर से स्प्रिंग समझो, चलो सिंपल एग्जांपल ले लो, ये आपका ओरिजिन है और ये था आपका इधर नेगेटिव वैल्यूज, इधर पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये -8 मीटर/सेकंड, यानी कि किस तरफ मूव कर रही थी बॉडी, बॉडी किधर मूव कर रही थी, इस तरफ, समझ गए। लेकिन फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ, क्योंकि F = m में एक्सेलरेशन तो इधर है +2, प्लस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव, समझ रहे हैं, -1, ये इधर से आ रही है बॉडी, तो इधर बॉडी जा रही है, उसकी स्पीड स्लो होती चली गई, उसके बाद फिर वो यहां से वापस, आप ऐसा गुलेल टाइप समझ सकते हो, इसको गुलेल टाइप समझ लो, या मतलब आप रबड़ बैंड है आपके हाथ में, आपने उसको ऐसे ऐसे स्ट्रेच किया तो वो फिर वो वापस आएगा, है ना। तो फोर्स इधर लग रही है, ये आप एक छोटी सी बात समझो, ये हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, ये बॉडी की वेलोसिटी पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो गई, यानी पहले बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बॉडी की डायरेक्शन क्या हो गई, यहां रुक गई। चलो तुम इसे अपवर्ड मोशन समझ लो, अपवर्ड मोशन समझ लो, चलो अपवर्ड मोशन समझ लो, ये आसान है तुम्हारे लिए, समझना आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें अपवर्ड मोशन में G10 हो जाता है, जबकि ए यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये ग्राफ जो है ना आपका ऐसे ही बनेगा। तो यहां देखो ऊपर गए, इसमें आप जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव ले लो इस बार, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है तो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, ले लिया। यहां वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी आपकी, -8, -6, -4, ठीक है, -2 और फिर 0, और फिर नीचे ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ऊपर डायरेक्शन नेगेटिव थी आपकी, तो फिर वेलोसिटी वापस इंक्रीज हो रही है, 2, 4, 6, 8, समझ गए। तो आप इसको ऐसे ले लो, पहले वेलोसिटी इधर गई, माइनस ये जो मतलब जो आपका टाइम है, अरे इधर गई और फिर यहां से वॉल थी और फिर वापस इधर आ, तो इस तरीके से, तो इधर गई तो नेगेटिव वेलोसिटी, इधर आई वापस तो पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। इधर नेगेटिव क्यों थी, आप ना इसको पीछे तरफ खींच रहे थे, मान लो रबड़, अरे हाँ ये ठीक रहेगा, ये बेस्ट एग्जांपल है। आपके पास वो होता है ना एक हाथ में एक गेंद होती है, जिसके वो रबड़ से उसको आप फेंकते हो, वो वापस आपके पास आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको आप, हाँ यो यो, हाँ यो यो बॉल, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये उसी का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यो यो बॉल का। तो बॉल आपने फेंकी, बॉल इधर गई, ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो आपने यो बॉल को फेंका, बॉल इधर गई नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वो समझ गए। तो देखो यहां टाइम आपने ऑब्जर्व उसको यहां करना शुरू किया, बॉल जब वो रुक गई और वापस आनी शुरू, तब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, टाइम वो क्या है, 0। आगे बात समझ में, यस सर, चलो ठीक है। तो यानी कि हर टाइम जो फोर्स लग रही थी, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने स्ट्रेच किया तो फोर्स इज इक्वल्स टू
के एक्स, के कांस्टेंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स आपकी पोजीशन है, ये आपका जीरो था यहाँ पे और यहां से इसकी पोजीशन इधर गई, तो जैसे जैसे आप इसे दूर जाते चले गए फोर्स जो है वो सेम नहीं है, इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हैं फोर्स इंक्रीज हो रही है और लास्ट में जाके फोर्स बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई वो आगे नहीं जा पाई और वो रुक गई बॉल, ठीक है। और फिर वहां से वापस इस तरफ, तो ये स्प्रिंग फोर्स का स्टूडेंट्स, जैसे आप F इज इक्वल टू एम में लिखते हैं, ये स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से जो इलास्टिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ये उसका फार्मूला है, समझ रहे हैं आप, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रही है तो फोर्स कहां लग रही है, वो खींच कहां रहा है, इधर। अगर आप इसको इधर फेंकते तो वो इधर, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग को आप जिधर खींचोगे स्प्रिंग उल्टा दूसरी तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ जाएंगे ये, हम करेंगे इसको स्प्रिंग फोर्स को। तो अभी अभी अब याद हो गया होगा, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो है, ये दोनों जो है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने बताया था अगर वेक्टर क्वांटिटी बीच में, अगर दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी और बीच में उन दोनों साइन अगर अपोजिट हैं तो इसका मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगी। याद आया, बताया था मैंने, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है इन दोनों का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि एक के आगे माइनस साइन, एक के आगे प्लस। स्टूडेंट्स हम यहां कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे कि किस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम थी, क्या निकाल रहे थे हम, किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम थी, तो ये कैसे निकाल लेंगे। ओके, तो इसका क्या तरीका हुआ, मिनिमम कब होगी भाई, वेलोसिटी क्या, स्लोप, वेलोसिटी क्या है, स्लोप ही तो है। तो स्लोप मिनिमम कितना होगा, यहां पर जो है जब स्लोप जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आ गया ना। तो जीरो कब होगा, तो हम जब, ये हमारे पास फंक्शन था x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो हमने वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी किया, तो ये आया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर और ये आ गया 2t। अब हम इसको वेलोसिटी, ये स्लोप जीरो कब था, स्लोप जीरो when 2t is equals to 0, यानी वेलोसिटी जीरो, मतलब 2t is equals to, यानी कि t is equals to 0। अब ये जो स्लोप है ये जीरो आ गया। दो तरीके स्लोप जीरो आ सकता है स्टूडेंट्स, एक तो चीज बढ़ के घटती हो, एक घट के बढ़ती हो, आप देख रहे हैं, दो केसेस में जीरो आ सकता है स्लोप। तो स्लोप अगर जीरो है तो इस केस में क्या है, मैक्सिमा, क्या है, मैक्सिमम, हाँ, और यहां पर क्या है, ये मिनिमम। मिनिमम। अब हमें पता कैसे लगेगा कि स्लोप जीरो, तो पता लग गया हमें कि t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, लेकिन ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, देखो ये कैसे पता लगेगा, स्लोप जीरो आ गया तो ये मैक्सिमम है मिनिमम है। इस स्लोप का एक बार और स्लोप निकाल लो, ये स्लोप क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहां पर, इस केस में, मैक्सिमम के केस में देखो यहां स्लोप क्या हो रहा है, ये स्लोप नेगेटिव, ये स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप जीरो हो गया और फिर स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। तो स्लोप क्या हो रहा है यहां पर, पॉजिटिव से जीरो डिक्रीज हुआ ना, और इससे तो स्लोप इज, डिक्रीजिंग, हाँ, यानी कि स्लोप का स्लोप नेगेटिव है, स्लोप का स्लोप स्लोप डिक्रीजिंग मींस स्लोप का स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप का स्लोप भाई डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव ना, यहां ये समझ में आ गई बात। इस केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में, मिनिमा के केस में पॉजिटिव, देखो ये स्लोप यहां नेगेटिव था, ये यही वाला केस है, यहां स्लोप नेगेटिव, फिर स्लोप जीरो और फिर स्लोप
पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी स्लोप इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव होगा, हाँ, Yes, sir. तो स्लोप का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यानी कि स्लोप का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपको मिनिमा मिल गया। अगर स्लोप का स्लोप नेगेटिव है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो आपको मैक्सिमा मिल गया। स्टूडेंट्स ये बड़े काम की चीज है आपके, ठीक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। पहली बार आप इसे सुन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अब ये t0 आ गया। अब मैं इस स्लोप का एक बार और स्लोप निकालूंगा। ये स्लोप था ना आपका 2t, तो मैंने इसका एक बार और स्लोप निकाला dv बाई डी टी, यानी d बाई डी टी ऑफ इस स्लोप का स्लोप। अब जो आ रहा है ये क्या है? एक्सेलरेशन आ रहा है आपके पास। ये क्या है? स्लोप का, ये v क्या था? स्लोप। और इसका आपने एक बार और स्लोप निकाल दिया। इज दिस क्लियर? तो क्या आ गया? ये स्लोप 2 प्लस 2 क्या आ गया? +2। यानी कि स्लोप का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो आपको स्लोप का स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था आपका यहां पर, ये पॉइंट क्या था? t इज इक्वल टू 0, मिनिमा था। तो इसलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा है, और अगर वो नेगेटिव आता है स्लोप का स्लोप, तो वो मैक्सिमा होता है। ओके, Yes. कोई बात नहीं, ये सब जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप दोबारा से इसे फिर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। Yes. तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए ये जो डिफरेंशिएशन है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस डिफरेंशिएशन फार्मूले देख लेते हैं हम थोड़े से। फार्मूले पहले भी मैंने बताया था आपको। फर्स्ट फार्मूला डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर एन, तो क्या आ जाएगा? ये पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड फार्मूला डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू टी एन, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स, और डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटू, ये तो वही हो गया ना, अब कांस्टेंट बाहर निकल गया, बाकी तो वही है। तो n t रेज टू द पावर n माइनस। बात आ गई समझ में? yes, Yes, sir. और तीसरा पॉइंट स्लोप ऑफ कांस्टेंट, ये सब y है, y इज इक्वल्स टू टी एन, y इज इक्वल्स टू सी टी एन, y इज इक्वल्स टू c। आप निकाल क्या रहे हो? dy बाय dx। Yes. ओके, तो ये अलग अलग कर्व्स हैं। ये कर्व थी टी एन, ये कर्व है सी टी एन, ये कर्व है सी। तो y इक्वल टू सी, तो आपको पता है ये लाइन मिल जाती है आपको, y इज इक्वल टू 5 जैसे। तो इसका स्लोप कितना होगा स्टूडेंट्स? पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, तो 0। तो आप ये जो निकाल रहे हैं ये इस कर्व का स्लोप फंक्शन है। आई कुछ बात समझ में? yes, sir, Yes, sir. तो दिस इज स्लोप फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसका स्लोप फंक्शन है? C. Constant. स्लोप फंक्शन ऑफ सी टी एन, ठीक है। ये किसका स्लोप है? sir, So C, function of C. ऑफ y इक्वल्स टू सी का। C, इज दिस क्लियर? Yes. yes, चलिए अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो इसका स्लोप फंक्शन क्या होगा? इसका स्लोप फंक्शन क्या होगा? dy बाय dx। T, या आप इसको t में ही रख लो बेशक, ये t से कर रहे थे आप सारे फार्मूले, अगर आप t में करेंगे, आपने y इज इक्वल टू क्या लिख दिया? t क्यूब। ये कर्व है आपकी, ठीक है। तो dy बाय dt क्या हो जाएगा? y की जगह ये पुट कर दो, तो d बाय, excuse me, sir, यस, सर ऊपर हमने देखा था x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वो यूज हो सकता है? देखो आप dx बाय dt, ये वेलोसिटी एक ही बात है, आप dx बाय dt निकाल लो। या देखो यहां पर आप x लिखो या यहां पे y लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है
तो आप x इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिख लो और आप dx बाई dt निकाल लो। यही तो निकाला था आपने, ऐसा कर लो। तो क्या आएगा? ओके डी बाई डी टी। भाई आप एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, या टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 है, या वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 है, या ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 है, इससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नो सर नो सर आगे बात समझ में है? तो दिस इक्वल्स टू यस 2t। ओके, अब ओके ये कर्व थी आपकी, तो इस कर्व का ये स्लोप फंक्शन आ गया। अब आपकी कर्व है सपोज x इक्वल्स टू टी क्यूब, तो इसका स्लोप फंक्शन क्या आएगा? 3t स्क्वायर वेरी गुड। और इस ये तो आगे वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका? इसका फिर से एक बार स्लोप निकाल दो, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? 3 3 तो बाहर आ गया ना बेटे, 3 3 इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 आगे आ गया, और पावर एक कम कर दो, 2 माइनस 1, तो 2t हो जाएगा ना। यस सर सो दिस इक्वल्स टू 6t। तो अगर आपकी पोजीशन टी क्यूब के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर समझ में आ गई बात है? यानी कि अगर t की पावर 2 होगी, अगर t की पावर 2 होगी तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या t की पावर 1 हो या 2 हो। 1 है तो लीनियर रिलेशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, अगर x इज इक्वल टू टी होता तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? dt बाई डी टी, डेट इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2t होता तो ये 2 बाहर आ जाता, ये 2 इंटू 1 हो जाता, 2 हो जाता। अगर पावर 1 है, डिफ्रेंशिएशन करने पर पावर एक कम हो जाती है, तो अगर t की पावर 1 है तो t खत्म हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। समझ में आई कुछ बात? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, अब इसका आप स्लोप फंक्शन का एक्सेलरेशन निकालोगे तो d2 बाई डी टी क्या आ गया? 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। यानी पावर 1 है तो ये वही केस हो गया, पावर 1 तो यानी कि ये खत्म हो जाएगी टर्म, यानी कि a 0 था। आगे बात समझ में? यस सर अब पावर 2 है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो पावर 2 आ गई आपकी, ये वाला केस बन गया। लेकिन अगर पावर 3 है तो ये तो किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में है ही नहीं, तो पावर 3 आते ही एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी में पावर 2 आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन में पावर कितनी आ जाएगी? t की 1, यानी कि t जो है, यानी कि एक्सेलरेशन t पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसमें आप ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। आ गई कुछ बात समझ में? यस तो अगर ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप ये तो आप तभी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब a कांस्टेंट है, व्हेन a इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो x है वो उसमें टी स्क्वायर है। इज दिस क्लियर? यस सर या x इक्वल्स टू टी है, x इक्वल्स टू टी है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। 0 और इसमें एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा टी स्क्वायर में, ठीक है? ओके सर लेकिन अगर x इज इक्वल्स टू टी क्यूब है तो कौन से फार्मूले होंगे फिर? ये तो क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए थे, या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, तो फिर क्या फार्मूले होंगे ये ध्यान देखेंगे। v इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी है, ठीक है? अरे है या नहीं?
यस सर। तो इसको आप क्या कर सकते, डी टी उधर चला जाएगा, तो v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ओके, ओके सर। अब यहां पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट का मतलब होता है, ये जो आप एरिया अंडर द कर्व निकालते थे ना, जो आप एरिया निकालते थे, ये वो एरिया ही है, ये सम है, एस, ये लॉन्ग एस है, लॉन्ग एस मतलब सम, और ये क्या है, dx, यानी स्मॉल स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट थी आपकी, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो स्मॉल टाइम में जो वेलोसिटी थी उसको मल्टीप्लाई किया तो एक डिस्प्लेसमेंट आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर उन सब को सम कर दिया, उन सब को ऐड कर दिया, छोटी 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 डिस्प्लेसमेंट, सारी छोटी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया, तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ओके, यस सर। ओके यस। तो इधर से टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये जितनी भी थोड़े से टाइम पर कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, फिर थोड़े टाइम में कितनी इंस्टेंट, उन सबको आपने हाँ ऐड कर दिया, तो v इंटू डी टी। तो इसीलिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे स्टूडेंट्स बात करें, यस सर। यस सर। और अगला फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा है ना, तो a इंटू डी टी इज इक्वल्स टू, भाई ये इधर चला जाएगा, और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, जब इंटीग्रेशन, जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। ओके, ओके सर। यस। बार बार करेंगे तो इजी है, बहुत ज्यादा बातें नहीं है, गिनती की बात है। तो ये आ गया आपका सर। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट निकालने का जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये आ गया वेलोसिटी निकालने का जब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। अब यहां से जो, हाँ, अब इसी के जो फॉर्मूले हैं dv इज इक्वल टू, अब ये dv की वैल्यू अगर आप यहां डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखा नहीं था आपने, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आई, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, एक्सेलरेशन। तो दो बार कर दिया ना आपने, एक्स का एक बार किया तो v आया, है ना, फिर जो आया उसका एक बार वो डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका एक ही तो मतलब है। यस सर। अब ध्यान देखेंगे, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला ये था, ठीक है, तो एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, अब तीसरा फार्मूला हो रहा है एक्सेलरेशन का, वो कैसे, dv बाई डी टी है, आप इसको ds से dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब आप इस dx को dt को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, dx को या इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो dx को इधर ले आओ और dv को उधर ले जाओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये इंटरचेंज तो कर रहा हूं, दो नंबर मल्टीप्लाई है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, du by dt। ये dx बाई डी टी क्या है, v, तो v इंटू डी यू बाय डी वी बाय डी एक्स। आगे बात समझ में, फिर से देखो यस सर। क्या किया आपने, dv और dx को इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ले गए। यस। अब dx बाई डी टी क्या होता है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये आपका है dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का तीसरा फार्मूला आ गया आपके पास। बस 3 ही है और नहीं है, तो आसान है ये। Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी फाउंडेशन बुक में, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एक्स रेज टू पावर 1/2, थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x 3/2, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 10। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, या आप कहीं क्वेश्चन ले सकते हैं, इंटरनेट से मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास फाउंडेशन बुक है तो उसी से करो, नहीं है तो आप इंटरनेट से क्वेश्चन ले सकते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन लेकर, और ये इजी इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाय dx, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, dx रेज़ टू पावर 4/dx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। इस तरीके से, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में, फाउंडेशन में पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। सब में यही करना है, बस पावर आगे ले गए, पावर 1 कम कर दो, ओके। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कल इसी में। इसको आप रिवाइज कर लेना, तभी कर अगले लेक्चर्स तभी समझ आते हैं जब पीछे का आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ओके। Yes, sir. हाँ, ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir, for teaching us. Okay students, take care of yourself.